Hello everyone, welcome back to the best LRDI set series. This is Shubham from Team Prepzone, and today I'm bringing to you one of the toughest, or rather a really great, one of the best LRDI sets that you would have ever solved across any platform. And I openly challenge any student to solve this set and gain quantum of confidence that you need for this LRDI section. Okay, so no matter how much time does it take you guys, try to crack this set. It's a wonderful set, okay, but it will really give you a lot of understanding and approach and concept clarity on how to attempt a very unconventional set. But before that, one small piece of advice and a suggestion or a support that I need from you guys is, guys, please subscribe to the channel and kindly share these videos and ask your friends to subscribe to the channel. We are coming up with good support for everyone in the last 2 months by releasing some of our class videos, but that we will only do once we reach some decent number of subscribers. So please subscribe to the channel, ask your friends to subscribe, and वीडियो पे एटलीस्ट कमेंट करके मुझे बता देना हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट. वाज द सेट गुड? कैसा लगा? व्हाट वाज द फीलिंग? एंड हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू सॉल्व द सेट? ओके, very very important. So let's directly jump on to today's set. This is the schedule of the marathon event. In case you want to be a part of this close and rigorous practice that happens on a daily basis, you may want to check this out. And this is what the feedback of this marathon event is. Okay, so with this, let's move on to today's set, which is one of the best, and like I really enjoyed solving the set, and I'm sure you guys will also. Okay, so this is the set. Pause the video, see the set, and these are the 4 questions that follow. Okay, मुझे कमेंट में यार ये भी बता देना कि whether you would have left this set in exam और तुम try करते, कितना time invest करते, etc. That's important for me to know so that I can accordingly strategize the further sets. Okay, so this is the set. The set says the year is 2019. Beijing, London, New York, and Paris are in contention. Contention का मतलब पता होना चाहिए ना, to host the 2026 Olympics. मतलब ये 4 में से कहीं पे hosting होगी Olympics की. The eventual winner is determined through several rounds of voting by members of IOC. Okay, with each member representing a different city. Okay, IOC के बहुत सारे members है, right? एंड हर मेंबर एक डिफरेंट सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लोग वोट करते हैं. और दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. ऑल द 4 cities in contention, which means Beijing, London, New York and Paris, they are also represented in IOC. इसका मतलब ये चारों cities भी वोट करती है. ओके, नाउ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. इन एनी राउंड ऑफ वोटिंग, द सिटी रिसीविंग द लोवेस्ट number of votes in that round gets eliminated. Okay, the survivor after the last round of voting gets to host the event. Okay, तो क्या गिवन है कि हर राउंड होते हैं. यहाँ नीचे टेबल मुझे दिख रही है, राउंड 1 2 3, ठीक है, 3 राउंड्स हो रहे हैं और तीनों राउंड्स में क्या गिवन है, 3 राउंड्स हो रहे हैं, राइट. एंड तीनों राउंड्स में हर राउंड में जो सबसे लोवेस्ट वोट जिसको मिल रहा है वो वाली सिटी एलिमिनेट हो जाती है. फॉर एग्जांपल मुझे राउंड 1 में न्यूयॉर्क एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब न्यूयॉर्क को सबसे लीस्ट वोट मिलेंगे, राइट, आउट ऑफ लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस एंड बीजिंग. ठीक है. A member is allowed to cast votes for at most 2 different cities in all the rounds of voting combined. Okay, मतलब कोई भी मेंबर ज्यादा से ज्यादा 2 different cities को वोट कर सकता है. Okay, hence a member becomes ineligible to cast a vote in a given round if both the cities he or she voted in earlier rounds are out of contention in that round of voting. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि यार मैंने राउंड 1 में मैं मान लो बीजिंग को वोट किया. ओके, एंड बीजिंग बाहर हो गया क्योंकि उसके सबसे लोवेस्ट है. फिर राउंड 2 में मैंने मान लो पेरिस को वोट किया, पेरिस सबसे लोवेस्ट था. इसका मतलब राउंड 3 में मैं वोट नहीं कर सकता. आई बिकम इनएलिजिबल क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 डिफरेंट सिटीज को वोट कर चुका हूं मैं. ओके, देन a member is also ineligible to cast a vote in a city if the city he or she represents is in contention in that round of voting, which means अगर राउंड 1 में मैं चार सिटी कंटेंशन में है, बीजिंग, लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस, तो ये चारों सिटी के जो डेलीगेट्स होंगे या इन चारों सिटीज के जो मेंबर्स होंगे ये लोग वोट नहीं करेंगे. ओके, दिस इज गिवन टू मी. एज लॉन्ग एज द मेंबर इज एलिजिबल, he or she must vote and vote for only one candidate city in any round of voting. Okay, the following incomplete table shows the information on the cities that received the maximum and the minimum votes in different rounds, the number of votes cast in their favor, the total votes that were cast in those rounds. Okay, और मेरे को कुछ अलग information भी given है. Okay,
एंड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अमंग दोज हु वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1 वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड 2। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि यार बीजिंग के टोटल राउंड 2 में जिन लोगों ने न्यूयॉर्क के राउंड 1 में वोट किया उसमें से कितने लोगों ने बीजिंग को राउंड 2 में किया, राइट। इसका मतलब मुझे प्रॉपर स्प्लिट चाहिए, राइट। तो मैं एक टेबल बनाना शुरू करता हूँ स्टार्टिंग में। ओके, मेरे को टेबल प्रोबेबली पहले बना लेनी चाहिए, बट ठीक है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वापस, ठीक है। पहला तो हो गया राउंड कि भाई ये कौन सा राउंड है। ओके, देन चारों सिटीज, मुझे बेसिकली देख हर राउंड में मुझे हर सिटीज के वोट्स पता करने हैं, राइट। तो चारों सिटीज कौन सी है मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। दोज आर लंडन, पेरिस, बीजिंग एंड न्यूयॉर्क, राइट। पेरिस, देन बीजिंग, बीजिंग एक सिटी, एंड देन लास्ट कौन सा था, इट वाज न्यूयॉर्क, राइट। न्यूयॉर्क, ये चार सिटीज है, राइट। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं एंड टोटल वोट्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वोट्स भी मुझे गिवन है, सो मैं यहाँ पे टोटल वोट्स भी डाल देता हूँ, राइट। और मुझे पता है कि बहुत सारे सिटीज फिर वोट्स नहीं कर पाएंगे, दे विल बिकम इनएलिजिबल। तो मुझे एक जगह ये भी लिखना पड़ेगा कि यार टोटल मेंबर्स कितने हैं। ओके, कि अगर टोटल 100 लोग हैं उसमें से कितने लोग वोट कर रहे हैं। तो ये एक टेबल मुझे बनानी पड़ेगी एंड मुझे फिर ये पूरी टेबल को अच्छे से फिल करना है, राइट। सो आई विल ट्राई। ये हो गया। Excuse me for my handwriting. When I use this tab, it becomes slightly difficult for me to fill it. Okay, ये रहा total votes, ये total members, right? ठीक है। और मेरे पास rounds कितने कितने rounds है? Total I have how many rounds? I will have 3 rounds, right? ये मुझे information already given है. So say this is round 1. Say this is round 2. Let's say this is round 3, right? Also put some lines so that clarity मिल जाए और ये टेबल मेरे को फिल करनी है। एक्सटेंड दीज लाइंस, ओके। तो पहले तो ट्राई करो, मतलब पहले मुझे बताओ कि यार कितने लोगों को एक क्वेश्चन चमका है कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिकॉज अगर तुमको क्वेश्चन नहीं समझा देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। अभी फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू यूज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू मी। राउंड 2 में टोटल वोट्स इज 8375, राउंड 2 में टोटल वोट्स इज 83, it is 75, okay, and राउंड 1 में लंदन को 30 मिलता है, न्यूयॉर्क को 12 मिलता है। लंदन को मिला 30, न्यूयॉर्क को मिला 12, ओके। देन राउंड 2 में 32 एंड 21, 32 एंड 21, ओके। और मुझे पता है कि बीजिंग को मिला है लीस्ट वोट राउंड 2 में, राइट, विच मींस राउंड 3 में बीजिंग नहीं आएगी, ओके। एंड न्यूयॉर्क को मिला है लीस्ट वोट इन राउंड 1, विच मींस राउंड 2 एंड राउंड 3 में न्यूयॉर्क विल बी एलिमिनेटेड एंड दे विल नॉट गेट एनी वोट, राइट। और मुझे ये पूरी टेबल को फिल करना है कि अब पेरिस को कितना मिला, बीजिंग को कितना मिला, वोट्स इतने हैं। देखो हर राउंड में ना वोट्स भी कम हो रहे हैं, राइट। दिस इज अगेन अ क्लू, बट अभी लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। सो फर्स्ट थिंग, देखो मुझे क्या गिवन है। अभी मुझसे इंफॉर्मेशन में ये गिवन है कि यार फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 में, ठीक है, मैं पहले ये भी निकाल लेता हूँ कि यार मतलब see this will also become very important that which are those cities जो वोट नहीं कर रही है, which are those cities that are not voting, right। तो यहाँ पे मुझे कहीं लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी सिटीज वोट नहीं कर रही। जैसे राउंड नंबर 1 में आई नो सिटीज ऑफ लंदन, पेरिस, बीजिंग एंड न्यूयॉर्क कैन नॉट वोट बाय, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी कि ये पॉइंट नंबर 3, राइट। अगर ये सिटीज को कंटेंशन में खड़ी है वोटिंग के लिए तो इनके मेंबर्स या इनके डेलीगेट्स दे कैन नॉट वोट, राइट। सो दीज 4 cities कैन नॉट वोट इन राउंड 1, ओके। सिमिलरली इफ आई राउंड 1 में ये 4 सिटीज नहीं वोट करेगी, लंदन, पेरिस, बीजिंग एंड न्यूयॉर्क, राइट, व्हिच मींस अगर टोटल मेंबर्स x है सो टोटल वोट्स विल बी x-4। सिमिलरली मुझे राउंड 2 के टोटल वोट्स पता है, दैट इज 83, राइट। और मुझे ये भी पता है कि यार राउंड 2 में which are those cities that will not vote। मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ so that you guys are able to understand what I'm saying better। और कभी भी डाउट होगा इस यहाँ पे मेंशन मुझे बता देना कि भाई ये डाउट है, ओके। तो मैं यहाँ पे टेबल पे लिख देता हूँ कि यार these are the people who are not voting, ओके, not voting in round 1। राउंड 1 में बताओ कौन कौन से लोग वोट नहीं करेंगे। राउंड 1 में लंदन, पेरिस, बीजिंग एंड न्यूयॉर्क, these are the 4 cities that will not vote, right। राउंड 2 में
लंदन विल नॉट वोट, पेरिस विल नॉट वोट एंड बीजिंग विल नॉट वोट, राइट? जो न्यूयॉर्क सिटी का डेलीगेट था जिसने राउंड 1 में वोट नहीं किया था, ही विल स्टार्ट वोटिंग बिकॉज न्यूयॉर्क अभी एलिमिनेट हो गया, एंड ऑल ऑफ दीस 12 पीपल who have voted for New York earlier, they will also vote either to Beijing, Paris or London. I don't exactly know, right? Right? इसका मतलब लंदन, पेरिस और बीजिंग तीन सिटीज वोट नहीं करेगी. इसका मतलब अगर टोटल मेंबर्स x है, सो टोटल वोट्स हैज टू बी x minus 3, which means अगर टोटल वोट्स 83 है, राइट, तो ये 83 उन सारे लोगों के होंगे एक्सेप्ट लंदन का डेलीगेट, पेरिस का डेलीगेट एंड बीजिंग का डेलीगेट, which means टोटल मेंबर्स हैव टू बी 83 plus 3, which is equals to 86, राइट? टोटल मेरे पास 86 लोग होने चाहिए. अभी टोटल लोग अगर 86 है तो मैं ये इन्फॉर्मेशन सारे राउंड्स में फिल कर सकता हूँ, राइट, कि टोटल 86 लोग हैं. अब मुझे राउंड 1 में पता था कि अगर 86 लोग हैं तो 4 लोग वोट नहीं करेंगे, सो टोटल वोट्स हैव टू बी 82, राइट? इट हैज टू बी 82, राइट? सिमिलरली मुझे पता है कि दिस 83 should be the sum of 32 plus 21 plus this. So 32 plus 21 is 53. So this has to be 30, right? इसका मतलब लंदन को 30 वोट्स मिलने चाहिए इन राउंड नंबर 2. ये क्लियर है? ठीक है. नाउ विद एग्जैक्टली सेम लॉजिक, अभी देखो राउंड 3 में क्या हो रहा है, बीजिंग भी हो गया एलिमिनेट, राइट? व्हिच मींस बीजिंग के जो लोग हैं, ऑल द पीपल like delegates of Beijing will also be allowed to vote now, and all of these people who have voted for Beijing, इसमें से कुछ लोग अब लंदन को वोट करेंगे एंड कुछ लोग पेरिस को वोट करेंगे, राइट? बट विद द सेम लॉजिक कि यार ये 82 से 83 हुआ था, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज दिस नंबर 75 एंड व्हाई इज दिस नंबर नॉट 84? बिकॉज़ आई कैन सी दैट ओनली टू डिफरेंट सिटीज आर नाउ इनएलिजिबल टू वोट, राइट, व्हिच इज लंदन एंड पेरिस. सो इट हैज टू बी 84, बट व्हाई इज इट 75? सो मुझे समझना पड़ेगा कि यार इनएलिजिबल की और कंडीशन क्या है. एंड व्हेन यू रीड द क्वेश्चन अगेन, you would realize that I also have one more point, right, which says कि at most 2 different cities को ही लोग वोट कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब ऐसे लोग जिन्होंने राउंड नंबर 1 में न्यूयॉर्क को वोट किया था और न्यूयॉर्क अभी इनएलिजिबल हो गया, और जिसने राउंड 2 में बीजिंग को वोट किया था और अभी बीजिंग भी इनएलिजिबल हो गया, राइट? सो दोस पीपल हु वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1 एंड बीजिंग फॉर राउंड 2, they have already voted for 2 different cities in 2 rounds, right? And hence they will not be allowed to vote in round number 3. Why? Because Beijing is already eliminated and New York is already eliminated. अगर एक किसी ने पेरिस को किया होता तो they could have again voted for Paris, right? Because same city है. But different cities का मतलब होगा Beijing and New York, because ये दो cities eliminate हो चुकी है, इसीलिए जिन भी लोगों ने इन दोनों को वोट किया होगा वो अभी थर्ड राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट? इसका मतलब मुझे ये तो पता है कि यार दिस नंबर शुड हैव बीन 84, राइट? बट दिस नंबर इज एक्चुअली कमिंग एज 75, व्हिच मींस I have a difference of 9, right? Which means these 9 people are those people who must have voted to New York in round 1 and to Beijing in round number 2. Okay? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार इस round 3 में who are those people who are ineligible to vote? Of course, London is ineligible to vote, Paris is ineligible to vote, and 9 members. These are those members who have voted for New York in round 1 and to Beijing in round 2, right? New York in round 1 and Beijing in round 2. ये लोगों ने भी अभी वोट नहीं किया, इसलिए ये टोटल काउंट है 75. Okay, I hope this is clear. अभी देखते हैं और मैं क्या इंफॉर्मेशन यूज में ले सकता हूँ. I've used information number 2, I've used information number 3rd. Let's see. 1 तो simple information है, 4th भी simple information है. Let's see. All those who voted for London and Paris in round 1 continued to vote for the same cities in subsequent round as long as these cities were in contention, right? इसका मतलब क्या हुआ कि यार जो 30 लोग जिन्होंने लंदन को वोट किया था राउंड 1 में, इन्हीं 30 लोगों ने राउंड 2 में लंदन को भी वोट किया ही होगा, एंड राउंड 3 में भी एटलीस्ट इन 30 लोगों ने तो लंदन को वोट किया ही किया होगा, राइट? व्हिच मींस दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, नॉट 3 बट 30. सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे मान लो पेरिस के राउंड 1 में वाई लोगों ने यहाँ पे वोट किया है, राइट, तो यही वाई लोगों ने पेरिस को राउंड 2 में भी वोट किया होगा, राइट? बट इट डज नॉट मीन कि ये नंबर 32 होगा. वाई? बिकॉज देखो न्यूयॉर्क के कुछ लोगों ने भी पेरिस को वोट किया होगा, राइट? न्यूयॉर्क का जो डेलीगेट है उसने भी पेरिस को वोट किया होगा, बीजिंग के में भी कुछ लोगों ने पेरिस को वोट किया है, right? So I can safely say that this number of round 1 of Paris has to be less than equals to 32 for sure. Okay. और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 75% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड 1. ओके, अगर मैं कहता हूं कि यार बीजिंग को राउंड 1 में मान लो 4x लोगों ने वोट किया है, ओके,
75%. So if I assume कि बेजिंग को राउंड 1 में से 4x लोगों ने वोट किया है, so 75% of those, which means 3x for those have voted for Beijing in round 2, right? उसी में से 3x लोगों ने बेजिंग को राउंड 2 में भी वोट किया होगा, राइट? ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, ठीक है? अभी देखो मुझे और क्या क्या चीजें गिवन है. एक्स्ट्रा थिंग दैट आई नो फॉर श्योर इज, सी ये जो 21 का स्प्लिट आ रहा है, इस 21 का स्प्लिट क्या है? इस 21 में से हमने ये तो निकाल लिया था कि यार 9 लोग हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क को राउंड 1 में किया था, उसमें से 9 लोगों ने बीजिंग को राउंड 2 में किया, राइट? सो इस 92 का स्प्लिट इज से 12 प्लस 9, ठीक है? तो 12 प्लस 9 में से जो 9 है वो 9 यहां से आ रहा है, न्यूयॉर्क से आ रहा है 9, राइट? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क को वोट किया था. अभी मेरे पास बचता कौन है? न्यूयॉर्क का जो खुद का डेलीगेट है, मतलब अ मेंबर हु बिलोंग्स टू द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, because New York is no longer eligible. So New York must have voted to either Paris, to Beijing, or to London. But London ko to they can't vote because London ke votes are constant, which means all those members who have voted for London in round 1 have voted for London again, and there is no additional vote, right? Which means the additional vote of New York must have gone to either Beijing or to Paris, right? And if I'm saying that out of these 12 people, 9 people have voted to Paris, so I can say that 3 people must have voted to, sorry, if 9 people have voted to Beijing, 3 people must have voted to Paris, right? Because this 12 has to be satisfied somewhere. Okay? And मुझे ये भी पता है कि यार ये जो 4x है इसमें से 3x तो यहाँ जा रहा है, which means the remaining x should also go here, right? Remaining x should also go in Paris. So now let's try to use this, right? मुझे ये पता है कि यार 3x, okay, I know for a fact कि अगर ये overall count if that is 4x, right? तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ अभी. क्या इक्वेशन बनती है? If total is 4x in round 1 for Beijing, 75% is 3x ने बेजिंग को वोट किया है, this is given to me, प्लस न्यूयॉर्क के जो 12 लोग थे उसमें से 9 लोगों ने बेजिंग को वोट किया है, राइट? सो 3x प्लस 9. अभी एक और बंदा बचता है न्यूयॉर्क का डेलीगेट, राइट? तो उसने भी इसको वोट किया भी होगा या नहीं भी किया होगा. आई विल कंसीडर बोथ द केसेस. तो फर्स्ट केस इज द केस व्हेन न्यूयॉर्क गाय हैज नॉट वोटेड टू बेजिंग, एंड सेकंड केस इज अगर न्यूयॉर्क ने भी बेजिंग को वोट किया होगा, दिस विल बी 3x plus 10. Now this should be equals to 21, right? Now if I solve both the equations, यहाँ से मुझे मिलेगा x is equals to 4, यहाँ से मुझे मिलेगा x is equals to 11 by 3. Of course, if x is 11 by 3, 4x will be 44 by 3, but I know this has to be an integer number, right? So I can safely say कि second case नहीं होगा, which means first वाला case होगा, right? Which means New York delegate must have voted to Paris only and not to Beijing, right? Which means x is equals to 4. Agar x is 4, so I can very safely say that this number has to be nothing but 16, right? This number has to be 16. If this number is 16, I am saying uska 3, 4, 12 आ गया और 9 ये आ गया, which means एक जो न्यूयॉर्क वाला है, एक न्यूयॉर्क ने यहाँ पे वोट किया, right? So if I have to split this, so 1 will be of New York, right? 3 will be of Beijing. ये 3 बीजिंग वाले लोग आ ही रहे, राइट? क्योंकि 16 है, 16 में से 12 नीचे जा रहा है, ओके? तो बचे हुए 4 लोग हैज टू वोट टू पेरिस. सिमिलरली 12 का स्प्लिट इज 9 plus 3, so this 3 has to go to this, right? Right, so 3 न्यूयॉर्क एंड 3 लोग वो जिन्होंने न्यूयॉर्क को वोट किया था. सी 1 NY is जो न्यूयॉर्क का खुद का डेलीगेट है, 3 N is those people who have voted to New York in round number 1. They must have voted here, right? So now I can safely say that this sum has to be 82. So 16, 12 plus 30 is 42. Remaining is 14, 40. So if this is 16, this has to be 24, right? So this has to be 24 only, right? So now if this is 24, can I say safely? So now I'll also have to make a split, right? That out of these 12 people, out of this 21 people, 12 people are from Beijing who have voted to Beijing in round 1, and 9 people are New York guys जिन्होंने न्यूयॉर्क को राउंड 1 में वोट किया था, right? Round 1. Similarly, let's try to now have a split of this 32. So this 32 का split क्या होगा? It is given कि जिन्होंने भी पेरिस को वोट किया वो 24 तो पेरिस को वोट करेंगे ही वापस से, right? So 24 P है ही. 24 plus 3 plus 3 plus 1, 6 plus 1 7. Okay, which means 1 एक काउंट अभी भी बचता है, ठीक है? तो देखते हैं एक बार ये वापस से कि एक काउंट कहां से आ रहा है. ओके, लेट्स सी.
ओके ओके ओके, सी 16 में से आई थिंक मैंने यहाँ पे एक मिस रिप्रेजेंटेशन किया था, दिस हैज टू बी 4 पिचिंग, राइट? सी न्यूयॉर्क का एक डेलीगेट है, वो इसको वोट कर रहा है 1, ठीक है? आउट ऑफ दीज 12 पीपल हु हैव वोटेड टू न्यूयॉर्क सिटी, 3 पीपल आर वोटिंग टू पेरिस, 1 + 3 = 4। ओके, बीजिंग के 16 में से 12 लोग 3/4 बीजिंग को वोट कर रहे हैं, जो 1/4 है दैट इज 4, वो पेरिस को वोट करेंगे। सो 1 + 3 4 + 4 8 एंड 24 तो पेरिस का इनहेरिट हो रहा है। सो दिस हैज टू बी द demarcation of this 32. Okay, now let's see if there is any other information that I can still use. मैंने information number 1 use में ले ली। Information number 2 is those who voted for New York in round 1 voted for either Beijing or Paris in round 2. This is also used. The difference in votes cast for the 2 contending cities in last round was 1. Okay, अब मुझे पता है इन दोनों का sum is 75 and the difference is 1, which means sum has to be, something will be 37 and something will be 38. I don't exactly know कौन सा 37 है कौन सा 38 है, बट ये तो हो गई होगा, right? What other information is now given to me? It says 50% of those who voted for Beijing in round 1 voted for Paris in round 3, right? 50% of those who voted for Beijing in round 1, ठीक है? Which means ये जो 16 लोग हैं इसके 50% क्या होगा? इसकी 50% is 8 + 8. Now it is given कि this 16 का split is out of these, अभी से मुझे ये तो पता है कि यार this number has to be at least 30, राइट? ये 30 प्लस समथिंग होगा, राइट? और क्या इंफॉर्मेशन गिवन था मुझे? जस्ट अ मिनट। ऑल दोज हु वोटेड इन राउंड 1 कंटिन्यू टू वोट, राइट? ठीक है, सो ये 30 तो 30 रहेगा, व्हिच मींस ऑल दोज हु वोटेड फॉर लंदन दे विल कंटिन्यू टू वोट फॉर लंदन। और मुझे ये गिवन है कि यार ये जो 16 का स्प्लिट है, राइट, इट इज 8 + 8, सो इट इज गिवन कि इस 16 के स्प्लिट में से 8 पीपल आर एक्चुअली वोटिंग टू पेरिस, right? If only 8 people are voting to Paris, that implies that the remaining 8 people have to vote to London, right? Why? Because see, these 8 people of Beijing, they can't vote to Beijing because Beijing is out of the race. New York को वो वोट कर नहीं सकते हैं, तो या तो वो पेरिस को करेंगे या लंदन को करेंगे। पेरिस को 8 ही वोट हो रहे हैं, which means remaining 8 has to be voted to London only, right? That is the only way out. Okay. Is this clear? कैसा क्यों हो रहा है? Now let's see other cases. Okay, so now it was given to me in the question कि हाँ, see there is again one more case जो तुम बोल सकते हो कि यार बीजिंग के लोग इनएलिजिबल तो नहीं हो गए, बट मुझे पता है इनएलिजिबल कौन लोग हो रहे हैं। इनएलिजिबल सिर्फ वो लोग हो रहे हैं जिसने न्यूयॉर्क को राउंड 1 में किया एंड बीजिंग को राउंड 2 में किया। सो आई हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दोस केसेस, व्हिच मींस none of the other cities are now getting ineligible, right? So this has to be 30 + 8. 38 अगर ये है तो मुझे पता था this number has to be either 38 or 37. If this is 38, this has to be 37. अब एक बार इस 37 का स्प्लिट देख लेते हैं। मुझे पता है कि इस 37 में से 32 तो वही है लास्ट वाले, राइट? अभी 32 तो लास्ट वाली है, which is same कि 24 पेरिस वाले होंगे जिन्होंने पेरिस को ही कंटिन्यू वोट किया है। देन 3 लोग वो है जिन्होंने न्यूयॉर्क को राउंड 1 में वोट किया था, एक न्यूयॉर्क का डेलीगेट है, एंड 4 लोग वो है जिन्होंने बीजिंग को वोट किया था, राइट? सो दिस ये 32 तो है। मुझे ये पता करना है एक्स्ट्रा 7 लोग कौन है। तो एक्स्ट्रा 7 में मुझे पता है कि यार बीजिंग देखो रिमूव हो रहा है, राइट? बीजिंग सिटी इज नाउ गेटिंग एलिमिनेटेड, व्हिच मींस डेलीगेट ऑफ बीजिंग, एक बीजिंग वाला आदमी तो हो गई, राइट? द पर्सन हु इज फ्रॉम बीजिंग, ही मस्ट हैव वोटेड टू पेरिस, स्टिल दिस काउंट इज 33 ओनली। तो बचे हुए 4 लोग कहां से आ रहे हैं, राइट? वो मुझे पता करना है। सो लेट्स सी कि बचे हुए 4 लोग कहां से आ रहे हैं। सी ये जो स्टार्टिंग में जो बीजिंग का काउंट था 16, राइट? 16 में से मुझे पता है कि दिस 8 इज नाउ डायरेक्टली गोइंग टू लंदन, राइट? इफ दिस 8 इज गोइंग टू लंदन, द रिमेनिंग 8 हैज टू गो टू पेरिस। नाउ आउट ऑफ दीज 8 मुझे ये चीज पता थी कि यार आउट ऑफ दीज 8 4 people have voted to Paris earlier, which was contributing to 32, right? And remaining 4 was actually here. So see, this 16 was broken into 12 here, right? ये मैंने 12 लिखा था, this 12 was directly from Beijing and 4 was there. अभी ये 4 तो कंटिन्यू हो गया और ये 12 स्प्लिट हो गया वापस से 8 + 4 में। This 8 has directly voted to London and this remaining 4, these are the 4 people who voted to Beijing in round 2 must have voted to Paris in round 3. Okay, so these are the 4 people who have voted to Beijing in round 2 must have voted to Paris in round 3. तो भी मैंने पूरा सारा स्प्लिट निकाल दिया एंड दिस आल्सो कंप्लीट्स माय टेबल। सो अभी मैं एक बार क्वेश्चंस ट्राई करता हूं, लेट्स सी
I will change the color of my ink so that you guys don't get confused. बहुत ही बढ़िया question था. Must have been hard for you to understand. So don't share doubts. पूछ लो मुझसे, कुछ भी clear नहीं है तो. Question 1 is what percentage of members from among those who voted for New York in round 1 voted for Beijing in round 1 and round 2, right? So New York में 12 लोग हैं, उसमें से कितने लोगों ने बेजिंग को वोट किया है, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो मुझे पता है 12 में से 9 लोगों ने वोट किया, so 9 by 12 is nothing but 75% has to be my answer. Right. Second question is what is the number of votes cast for Paris in round 1? Paris को round 1 में 24 मिल रहा है. Answer is 4. Question number 3 is what percentage of members from among those who voted for Beijing in round 2 and were eligible to vote in round 3 voted for London, right? Okay. तो मुझे पता है, देखो बेजिंग को राउंड 2 में 21 लोगों ने किया था, बट क्या 21 के 21 लोग एलिजिबल थे राउंड 3 में? नहीं. 21 में से मुझे पता है ये 9 लोग तो एलिजिबल ही नहीं है. Why? Because 9 people have already voted to New York in round 1 and Beijing in round 2, which means the only people who are eligible to vote in round 3 is 12. So my base has to be 12. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? What percentage of members from among those who voted for Beijing in round 2 and were eligible to vote for London? इसमें से लंदन को कितने लोगों ने वोट किया, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट? तो मुझे पता है इस 12 का स्प्लिट वाज 8+4. 8 ने लंदन को वोट किया था एंड 4 लोगों ने पेरिस के लिए. सो दिस हैज टू बी 8 by 12, हेंस आंसर हैज टू बी 66.67. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे. यू गाइस माइट टेक 8 by 21 और आंसर गलत आ सकता है. ठीक है, तो देख लेना. Next question, which among the following statements must be true? IOC members from New York must have voted to Paris in round 2. Yes, न्यूयॉर्क वाला बंदा पेरिस को राउंड 2 में कर रहा है वोट, सो दिस इज करेक्ट. IOC member from Beijing must have voted for London. नहीं, बीजिंग वाला बंदा पेरिस को वोट कर रहा है, ये रहा. ठीक है, he is not voting to London. So information number 2 is wrong, which means answer has to be only 1. So मुझे बताओ guys, how was this set? What was the learning? क्या सीखा, वो बहुत जरूरी है. क्या ये क्वेश्चन कैट में करते? It was undoubtedly the toughest question that cat has ever seen. Okay, but इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. सो मेक श्योर तुम लोगों को समझ में आया है क्वेश्चन, एंड इफ इट्स क्लियर प्लीज कमेंट कर दो. हेल्प अस एनहांस आवर रीच. वी आर रियली वर्किंग एंड इतने बढ़िया सेट्स ला रहे हैं. सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज 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 शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. ओके, सो विद दिस वी विल वाइंड ऑफ and I'll see you again sometime soon. Have a good day.